نیا لہجہ غزل کا مصرع ثانی میں رکھا ہے، ہوا کو مٹھیوں میں، آگ کو پانی میں رکھا ہے۔ مہذب شہر کے لمبے سفر سے لوٹ آیا ہوں، سلیقہ زندگی کا گھر کی ویرانی میں رکھا ہے۔ غزل کہنے کا موسم قاسمی اب ہو گیا رخصت، سکون قلب تو اس کی ثنا خوانی میں رکھا ہے۔ ETV بھارت کی خصوصی نشریات ایک شاعر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عارف اقبال۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے شہر عظیم آباد کے نمائندہ شاعر، فکشن نگار، تنقید نگار اور تخریق کار جناب شمیم قاسمی صاحب۔ شمیم قاسمی صاحب ایک زمانے تک محکمہ تعلیم میں اعلیٰ عہدے پہ فائز رہے ہیں اور تقریباً 4 دہائیوں سے شعر و ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شعر و ادب کی دنیا میں آپ نے کب قدم رکھا؟ جہاں تک شعر و ادب کی دنیا میں قدم رکھنے کا تعلق ہے، یہ تو ذوق اور مطالعہ پر منحصر ہے اور خاندانی پس منظر پر بھی ہے۔ تو مجھے طالب علمی کے زمانے سے شعر و ادب سے لگاؤ رہا۔ کتابوں سے رشتہ میرے بڑے ابی تھے، وہ تاریخی کتابیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے میرا لگاؤ ہوا۔ تو تاریخی کتابوں میں خاص طور سے میں نے شیر شاہ پر ان کا ناول تھا صادق سادنوی کا پڑھا، تو ذہن میں ایک خیال ہوا کہ شیر شاہ جو اسی سرزمین کا سپوت تھا، جو پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا، اس نے جو کارنامے انجام دیے، کیا اس پر فکشن بھی لکھا جا سکتا ہے، کہانی بھی لکھی جا سکتی ہے؟ یہ تو تاریخی شخصیت تھی۔ تو میرے بزرگوں نے بتایا کہ تاریخی شخصیات پر بھی ناول لکھے گئے ہیں۔ تو میں نے اس کو اس زمانے میں میٹرک کا زمانہ تھا، اس ناول کو میں نے پڑھا۔ پھر میرے گھر پر ایک دین دنیا کوئی ارشد فہمی وغیرہ یا کوئی بھی اس زمانے کا مدیر تھا، وہ نکالتے تھے، میرے ہاں دین دنیا آتا تھا۔ والد محترم کبھی کبھی ڈالٹن گنج یا بنارس جاتے تھے تو 20ویں صدی لے آتے تھے، تو ذہنی رشتہ 20ویں صدی سے بھی قائم ہوا۔ تب تک میں لکھتا پڑھتا نہیں تھا، یعنی پڑھنے کی سطح پہ تھا، کوئی تخلیق کے کرب سے نہیں گزرا تھا۔ مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ ساسرام میں کوئی طرحی مشاعرہ تھا، اور تو مجھے بھی کہا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ عمر تھی، شوق تھا بزرگوں کے درمیان کلام پڑھنے کا، تو میں نے ایک شعر کہا تھا، اور وہ یاد ہے کہ دل و نگاہ کے رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں، دل و نگاہ کے رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں، جو ہو سکے تو میری روح میں سما جاؤ۔ شمیم صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کے شعری حوالے سے بات کریں، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ شمیم کے ساتھ جو لفظ قاسمی ہے، یہ کس مناسبت سے ہے؟ کیا یہ کسی مدرسے سے آپ کی فراغت ہے، یا قاسمی لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کا اشارہ ہے مدرسے سے، تو جو دانشگاہ دارالعلوم ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ہمارے خاندان کے بعض بزرگوں میں ایک قاسم علی صاحب تھے، ایک زاہد علی صاحب تھے، ان لوگوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور یہ پرانا زمانہ رہا ہے۔ اور اس مناسبت سے، اور خاص طور سے میرے اپنے وطن میں لوگ اپنے نام کے ساتھ ساسرامی لکھا کرتے تھے، جیسے قدیم نام راحت ساسرامی، جدید ادب کا نام شفق ساسرامی، تو بعد میں وہ شفق ساسرامی سے صرف شفق ہو گئے، حسین الحق ساسرامی، اور وہ محض حسین الحق ہو گئے۔ تو میں نے الٹرنیٹیو کے طور پر لفظوں کی آہنگی کو پس منظر میں رکھتے ہوئے قاسمی لکھنا شروع کیا، اور یہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ذہنی طور پر میرے اندر فکری سطح پر قاسمیت تو بہرحال موجود ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ دیوبند دارالعلوم میں ہی بیٹھا جائے تبھی آدمی قاسمیت ہو سکتا ہے، قاسمی جذبہ رکھ سکتا ہے۔ کتنی عمر میں آپ کی شاعری آپ نے شروع کی تھی؟ شاعری کی کرنے کی تو کوئی عمر ہوتی نہیں ہے، اور عشق کرنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا ایک سوال ایک ٹیکنیکل سوال ہے، تو تقریباً 16 سال کی عمر سے میں شعر و شاعری کی طرف راغب ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح عظیم آباد ایک دبستانی حیثیت رکھتا ہے،
उसी तरह उसी की एक शाख है सासराम। ज़बान कदीम से सासराम में शेर व सुखन की महफिलें सजती रही हैं और ख्वाजा मीर दर्द और नासिक वगैरह के ताल्लुकात सासराम से रहे हैं। यहाँ तक कि तारीख़ पढ़ने के बाद, मुताला करने के बाद ये मालूम हुआ कि सासराम का 16वीं सदी में पहला शायर शेर शाह सूरी था। शेर व शायरी करते हुए आपको तकरीबन 40 साल होने जा रहे हैं। कितने मजमू कलाम आपके आ चुके हैं? ज़ाहिर है 40 साल से मेरी ज़हनी वाबस्तगी शेर व अदब से रही है, शायरी से रग़बत रही है। शायरी में मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन पर मैंने तबा आजमाई ज़रूर की, लेकिन सिन्फ़ गज़ल मेरे लिए हमेशा महबूब रही है। और मैंने एक आध जगह इतराफ़ किया है कि सिन्फ़ गज़ल सच पूछिए तो मेरी स्वीट डार्लिंग है और मुझे इश्क है गज़ल से, गज़ल के फॉर्मेट से। तो शायरी मैं करता हूँ, लेकिन मैंने मुख्तलिफ़ असलाब पे भी काम किया है। शेरी मजमू कौन कौन सा है आपका? मेरा पहला शेरी मजमुआ गुमशुदा मौसम है 1984 में। उसके बाद गैप रहा, फिर मजमुआ आया अफसानों का 1993 में, जिसमें मुख्तलिफ़ रसायल में शायदशुदा अफसाने शामिल हैं। और उसके फ़ौरन बाद आतिश फ़शा नज़मों का मजमुआ आया और इसमें बेशतर नसरी नज़में हैं। जैसे आपने कहा कि शेर व शायरी से आपको इश्क है, तो क्या ये इश्क शेर व शायरी तक ही महदूद है या वाकई आप इसमें कभी गिरफ़्तार हुए थे? इश्क जो है ना, वो मैदान तसव्वुफ़ का भी एक अमल है। इश्क उसे ही नहीं कहते हैं कि जो सिन्फ़ नाजुक की तरफ झुकाव हो। तो इश्क हकीकी और मजाजी दोनों मेरी रूह की गहराइयों में आज भी मुजज़्ज़न है। और मेरे इशार पढ़ने के बाद ये आप पर मुनहसर करता है कि मानवी सतह पर आप उसे कैसा रुख देते हैं, है ना। और इश्क है, ये हकीकी भी है, ये मजाजी भी है। और कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं गुज़रा जिसके सीने में दिल धड़कता ना हो, है ना। अब धड़कता नहीं दिल किसी बात पर, रोना आता है मौजूदा हालात पर। अच्छा सर, इस शेर व शायरी की दुनिया में आपने मुशायरे को भी अटेंड किया, मुशायरा भी पढ़ा हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर? मुशायरों से सच पूछिए तो बहुत दिली लगाव मेरा नहीं रहा, लेकिन मैंने मुशायरे पढ़े। हिंदुस्तान गिर पैमाने पर मैंने जो मुशायरे पढ़े उसमें बनारस का मुशायरा है, दिल्ली का मुशायरा है, और बिहार की सतह पर दरभंगा है, सहरसा है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है और पटना के कई मुशायरे मैंने पढ़े। लेकिन मुशायरों में जो फी ज़माना जिस तरह का फैशन है और जिस तरह के शायरों के दरमियान शायर और शायरा हजरात के लटके झटके होते हैं, तो मैं थोड़ा सा फासला बनाए रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मुशायरा अगर थोड़ा अच्छे लोगों का ग्रुप कर रहा हो, अच्छे लोग नुमाइंदा शोरा आएँ तो मैं जाऊँ। आपके शेर व शायरी के हवाले से या आपकी इस खिदमत पे मुख्तलिफ़ इदारों से या सरकारी इदारों से, बिहार उर्दू एकेडमी है और भी दीगर इदारों से आपको इजाज़त बख्शा गया है? जहाँ तक एजाज़ का ताल्लुक़ है, अगर कोई मोहब्बत से मिला, आपकी तरह कोई जवान आया, उसने एजाज़ ये दिया कि मेरा इंटरव्यू लिया, तो ये भी एक एजाज़ ही मैं समझता हूँ। अब मटेरियलिस्टिक ज़माना है, तो इस सतह पर अगर देखिए तो मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड अक़लियती वज़ीर अपने ज़माने के थे मरहूम शाहिद अली खां, उस ज़माने में एकेडमी ने मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया। अब ये बड़ा अवार्ड है, छोटा अवार्ड है, मैं नहीं कहता। और दार्जिलिंग कला परिषद ने भी मुझे एक अवार्ड दिया और सभी के जो अवार्ड के सनद हैं, असनाद वगैरह और जो क्या वो बोलते हैं ट्रॉफ़ी वगैरह, वो सब घर पे बिखरी है। मुझे बहुत ज़्यादा इन सब से लेना देना नहीं रहा। अवार्ड तो मुझे मिला, अरबाब अदब का भी मिला, इल्मी मजलिस का अवार्ड मिला, प्रकाश फ़िक्री अवार्ड मिला, साहित्यकार सांसद
सीतामढ़ी से ये समस्ती पुर का भी मुझे अवार्ड मिला, प्रकाश फिरकी अवार्ड। इल्मी मजलिस के अवार्ड का नाम था प्रोफेसर हफीज़ बनारसी अवार्ड। आपकी शायरी में ज़्यादा रंग किसका गालिब रहा, किसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या लगता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ? शायरी में हर ज़माने में या हर ज़माने का शायर अपने पेशरो शायरी से मुतासिर रहा है। गालिब मिर्ज़ा बेदिल से मुतासिर रहे हैं, शाद अज़ीमाबादी गालिब से मुतासिर रहे हैं, जमील मजहरी शाद अज़ीमाबादी से मुतासिर रहे हैं। उसी तरह जदीद अदब में जो 3 अहम नाम गुजरे जिनका मैंने मुताला किया, जदीद शायरी का बड़ा नाम मेरी निगाह में सुल्तान अख्तर हैं, जिनका इंतकाल हो गया लॉकडाउन के ज़माने में। एक मोतबर नाम, तो जदीद शायरी का जो मोतबर नाम है सुल्तान अख्तर, उस कबीले के यानी उस ग्रुप के शोरा में ज़ैब गौरी का नाम आता है, मुज़फ़्फ़र हनफी का नाम आता है, सुल्तान अख्तर का नाम आता है। तो इन लोगों का मैंने मुताला किया और किसी मखसूस किसी शख्सियत से मुतासिर नहीं हुआ। क्या अभी की जो शायरी हो रही है वो वाकई शायरी हो रही है या फिर ये भी लफ्ज़ियाती का मामला चल रहा है? ताज़ा कार नस्ल सिर्फ लफ्ज़ों से खेल रही है और खुदनुमाई गालिब है। नई नस्ल को मैंने करीब से देखा है, जो कम से कम 2000 से और 2021 तक की नस्ल है। ये नेटवर्किंग सिस्टम से जुड़ी हुई है और उसे ही समझ रही है कि यही अदब है, यही शायरी है और कच्ची पक्की शायरी कर रही है। इसलिए नई नस्ल से मेरी गुजारिश है कि अपने सीनियर अदबा और शोरा को पढ़ें, शायरी के मिजाज को समझें। सिर्फ तुकबंदी का नाम शायरी नहीं है। तुकबंदी करके या नेटवर्किंग से एक ग्रुप, मखसूस ग्रुप बनाकर वक्ती शोहरत हासिल की जा सकती है, लेकिन मीर गालिब, फैज़, यहाँ तक कि सुल्तान अख्तर नहीं बना जा सकता। चंद नुमाया कलाम जो आपके वो जो बहुत पसंद आपको हो, वो आप 4-5 शेर सुनाएं आप। दरख्तों पर कोई मौसम ना आया, एक ज़माने से परिंदे धीरे धीरे उड़ रहे हैं, आशियाने से मेरे अंदर ट्रामों का, बसों का शोर रहता है। मेरे अंदर ट्रामों का, बसों का शोर रहता है। कभी ये दिल धड़कता था किसी के आने जाने से। तो ये थे हमारे साथ जनाब शमीम कासमी साहब, जिन्होंने शेर व अदब के हवाले से बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। ETV भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।